Hello. So today we are going to start our new series, that is wrist and hand biomechanics. So before going on to understand the biomechanics, we should know the anatomy of bones and the joints first. So we are taking today the anatomy which consists of bones and joints in today's lecture. So beta, this is the diagram of the wrist and hand complex. Okay, this is the lateral side, this is the medial side. So we all know that on the lateral side there is radius, okay, and over the medial side there is ulna. This is the radial styloid process and this is the ulnar styloid process. ठीक है, then there comes the 8 carpal bones. ठीक है, so carpal bones consist of a proximal row which is this and a distal row which is this. So the proximal row consists of from lateral to medial side scaphoid, lunate, triquetral, and in the triquetral there is pisiform bone. The pisiform bone is a sesamoid bone which is found in the tendon of the flexor carpi ulnaris. Okay, and it increases the movement arm. It acts as an anatomical pulley for the flexor carpi ulnaris muscle. ठीक है, and then we come over to the distal row. So distal row consists of from lateral to medial side trapezium, trapezoid, capitate and hamate. Capitate is the largest carpal bone, right? Then above them there are metacarpals. So there are total of 5 metacarpals. Then there come the proximal phalanx. In fingers there is proximal phalanx, middle phalanx, and there is distal phalanx. Whereas in thumb there is one metacarpal, one proximal phalanx, and one distal phalanx, right? So this is the brief bones which are anatomy of bones which are present in the wrist and hand complex. Now we come to the joint. So बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि जब हम रिस्ट की बात करते हैं तो द रिस्ट जॉइंट इज द रेडियो कार्पल जॉइंट. So radiocarpal joint means the joint which is formed between the radius, this bone, scaphoid, lunate and triquetral. Okay, so I'm again repeating, radiocarpal means the joint which is forming between the radius and the carpal bone. Ulna do not take part in the radiocarpal joint. Instead there is a TFCC complex, there is a disc present here which takes part in this joint which we will further discuss later. राइट बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, देयर इज रेडियोकार्पल जॉइंट जिसमें आता है हमारा डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विच इज कॉनकेव. ओके, and the proximal carpal row which consists of the scaphoid, lunate and triquetral, not the pisiform, right? So this is the convex part and the radius part is the concave part, right? So this is the radiocarpal joint. Then there comes the midcarpal. Midcarpal joint means the joint which is in between the carpal. Mid means between, carpal means the carpal bones, 8 carpal bones. So as I have discussed earlier, there is a proximal row of carpals, there is a distal row of carpals, right? So the joint between these is known as the midcarpal joint. तो बच्चों, जब भी हम रिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा मिड कार्पल और रेडियो कार्पल ये दोनों जॉइंट्स आते हैं. रिस्ट बोलेंगे तो सिर्फ रेडियो कार्पल आता है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स तो उसके अंदर मिड कार्पल और रेडियो कार्पल जॉइंट्स आते हैं, राइट? देन मूविंग ऑन फर्दर तो आता है हमारा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट. सो दिस इज अ जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल्स एंड बिटवीन द मेटाकार्पल्स. ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि कौन सा मेटाकार्पल कौन सी कार्पल बोन के साथ अटैच होता है. तो ये डायग्राम अगर आप ये पूरा यही डायग्राम एक बना के आओगे पेपर में बच्चों, तो आपको इसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस डायग्राम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. टीचर को अपने आप पता चल जाएगा कि बच्चे को इस बारे में पूरी नॉलेज है. तो अगर आपके पास आए एनाटमी ऑफ रिस्ट तो आप ये पूरा डायग्राम बना के आ सकते हो एज इट इज़. इसके अंदर जॉइंट्स भी मेंशन है, इंडिविजुअल बोन भी मेंशन है. लिगामेंट्स का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. ठीक है, तो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट विच इज़ फाउंड बिटवीन द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल्स एंड द बेस ऑफ द मेटाकार्पल. तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है मेटाकार्पल का, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ मेटाकार्पल.
ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है यानी कि जो आपका थंब का मेटाकार्पल है ना, ये ट्रेपीजियम के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, देखो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। जो आपका सेकंड वाला मेटाकार्पल है, ठीक है, वो किसके साथ कर रहा है, ट्रेपीजॉइड के साथ कर रहा है। ठीक है, बट कुछ पार्ट ट्रेपीजियम के साथ भी कर रहा है और कैपिटेट के साथ भी कर रहा है। ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका थर्ड मेटाकार्पल। तो थर्ड मेटाकार्पल सिर्फ कैपिटेट के साथ ही आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड के बाद हम सीधा जाएंगे फिफ्थ पे। तो फिफ्थ वाला किसके साथ कर रहा है, हैमेट के साथ। ठीक है, और जो फोर्थ मेटाकार्पल है वो कैपिटेट और हैमेट दोनों के साथ कर रहा है। समझो बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो ट्रेपीजियम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। जो सेकंड मेटाकार्पल है वो ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट तीनों के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। थर्ड वन इज ओनली आर्टिकुलेटिंग विथ कैपिटेट। फोर्थ वन कैपिटेट और हैमेट दोनों के साथ, एंड फिफ्थ वन विद ओनली हैमेट। सो दीज आर दी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये प्रॉक्सिमल फैलेंस है, ये डिस्टल मिडल फैलेंस है, ये डिस्टल फैलेंस है। तो ये जो फैलेंस होते हैं, इनके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, अब ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, तो बच्चों जो हमारे आईपी जॉइंट्स होते हैं ना, वो दो होते हैं इन दी फिंगर्स, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड दी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। बट अगर हम थंब की बात करें तो थंब के पास सिर्फ एक इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, बिकॉज जो उसका मिडल फैलेंस होता है ये नहीं होता उसके पास। दैट्स वाई उसमें सिर्फ एक इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, वेयर एज इन आवर फिंगर्स देयर आर टू, दैट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है बच्चों। अब ये जो मैंने इनकी शेप बना रखी है कि जो मेटाकार्पल है वो नीचे से तो कॉन्केव है, बट उनका जो अपर एंड है दैट इज़ द हेड ऑफ द मेटाकार्पल, वो कन्वेक्स है। अगर आप फिर प्रॉक्सिमल फाइलेंस पे जाते हो तो जो उसका बेस है वो कॉन्केव है, ठीक है, बट अपर एंड कॉन्वेक्स है। सेम ऊपर वालों के साथ भी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। तो ये आप ऐसे याद रखना कि जो रेडियस है वो कॉन्केव है, उसके ऊपर कॉन्वेक्स आया, फिर ये कॉन्वेक्स आया, मेटाकार्पल के बेस कॉन्केव आए, ये कॉन्वेक्स आया। ठीक है, फिर मेटाकार्पल का हेड कॉन्वेक्स था, प्रॉक्सिमल फैलेंस का नीचे का बेस कॉन्केव है। ऐसे ही मिडिल फैलेंस और डिस्टल फैलेंस सेम इज़ फॉर दी थंब। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर आप मेरे हाथ पे देखोगे, अगर आप मेरे हाथ पे देखो इस जगह, सो बच्चों ये जो है, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो दिस साइड इज़ माई रेडियस। ठीक है बच्चों, ये वाली साइड रेडियस है, दिस साइड अल्ना होगी। ठीक है, मैं आप ऐसे देखो, जिस साइड थंब होता है ना उस साइड हमेशा रेडियस होती है। ठीक है, जिस साइड आपकी लिटिल फिंगर होती है उस साइड आपकी अल्ना होती है। ठीक है, यहाँ पे होती हैं आपकी कार्पल बोन्स। ठीक है, ये जो आपको दिखता है ये, ठीक है, यहाँ पे होती हैं आपकी कार्पल बोन्स। ठीक है बच्चों, प्रॉक्सिमल रो, डिस्टल रो। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं आपके मेटाकार्पल्स। ठीक है, जो ये नक्कल्स बनाते हैं ना आपके, दीज आर द मेटाकार्पल्स। ठीक है बच्चों, फिर ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल फैलेंस, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल फैलेंस। इसके और इसके बीच में दिस इज़ द मिडल फैलेंस, दिस इज़ द डिस्टल फैलेंस। थंब में क्या हुआ कि दिस इज़ द मेटाकार्पल, इतना, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल फैलेंस, दिस इज़ द डिस्टल फैलेंस। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो ये वाला जो जॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज़ द DIP जॉइंट, क्योंकि ये मिडल और डिस्टल फैलेंस के बीच में बन रहा है। सो दिस लाइन मार्क्स द DIP जॉइंट। दिस इज़ द PIP जॉइंट विच इज मार्क्स द जॉइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल फैलेंस एंड द मिडल फैलेंस, दिस इज़ द PIP जॉइंट। थंब में क्योंकि सिर्फ एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल फैलेंजेस होते हैं, तो इसमें सिर्फ इंटरफेरेंजियल जॉइंट बनता है मार्क्ड बाय दिस लाइन। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। सो दिस इज़ द जॉइंट। ठीक है, पोस्टीरियरली डॉर्सल व्यू में देखें तो जो आपकी नकल्स होती हैं ये मार्क करती हैं हमारा MCP जॉइंट। CMC जॉइंट कहाँ होगा आपका, इस जगह।
कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में। मिड कार्पल जॉइंट कहाँ होगा? दोनों मेटाकार्पल रोज के बीच में, इस जगह। और रिस्ट जॉइंट कहाँ होगा आपका? इस जगह। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर है पूरा डायग्राम। अगर आपको पेपर में एनाटॉमी लिखने को आती है तो आप अगर ये डायग्राम इसी तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें विजिबल है कि इनकी सरफेसेस भी कैसी हैं, किसकी कॉन्वेक्स है, किसकी कॉनकेव है, कौन किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है ना बच्चों। अल्लाह को कभी भी आर्टिकुलेट करते हुए नहीं दिखाते रिस्ट जॉइंट में, बिकॉज अल्लाह इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट और द मोर प्रिसाइसली द रेडियोकार्पल जॉइंट। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं देन इट विल कंसिस्ट ऑफ बोथ द मिड कार्पल जॉइंट एंड द रेडियोकार्पल जॉइंट। सो आपको ये पूरा डायग्राम एज इट इज़ बना देना है। आप आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लिगामेंट्स एंड द लिगामेंट इंस्टेबिलिटी, दैट इज़ DCVC। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लेना।